بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 3۔ وہاں سے جلا بھنا اصغر سیدھا گوال منڈی پہنچا۔ لاہوری کلچوں کے ساتھ مرغ چولے اور پائے کھاتے ہوئے وہ مسلسل رینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بس ایک بار وہ مان جائے، ایک بار ہاں کہہ دے، ایمان سے اپنی تو لائف بن جائے۔ زندگی میں پہلی بار کسی پہ اس کا دل آیا تھا، اور دل بھی ایسی جگہ آیا تھا کہ وہ برا پھنسا۔ لڑکپن میں ہی باپ کی بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ کام پہ جانا شروع کر دیا۔ باپ کی شہر میں چلتی ہوئی اسپیئر پارٹس کی دکانیں تھیں۔ بڑا بھائی مظہر کالج میں پڑھتا تھا اور پرہجوم قسم کے بازار کی تنگ تنگ سی دکانوں میں بیٹھ کے اسپیئر پارٹس بیچنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو اصغر کی پڑھائی میں دلچسپی کم تھی، دوسرا اس کا دماغ بھی 2 کو 4 اور 4 کو 8 میں بدلنے میں ذرا زیادہ چلتا تھا۔ اس لیے باپ نے ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے اسے اس کاروبار میں سیٹ کر دیا، اور اس نے بھی مایوس نہیں کیا۔ کہاں سے کہاں پہنچایا ان دکانوں کو۔ اب وہ بڑے بڑے شو رومز میں تبدیل ہو چکی تھی، اور وہ بھی شہر کی معروف اور مہنگی مارکیٹس میں۔ مگر ان سب میں وہ زندگی کی ہر رنگینی اور لطافت سے دور رہا۔ ماں اور بہن کی فرمائشیں پوری کرنے میں ہی مشین بنا رہا۔ ہوش آیا جب مظہر اپنی پسند کی بیوی لے کر آیا۔ اسے منزہ پسند آئی تھی۔ یہ الگ بات کہ اس نے کبھی ماں کے سامنے اس کی تعریف کرنے یا اس کی حمایت میں ایک لفظ کہنے کی غلطی کبھی نہیں کی تھی۔ انہی دنوں گھر میں آئے دن ہونے والی چپکلش سے بیزار ہو کے اس نے دوستوں کے ساتھ باہر وقت گزارنا شروع کر دیا، اور تب ہی وہ رینا سے ملا۔ رینا کا تعلق اس بازار سے تھا، یہ الگ بات کہ وہ وہاں رہتی نہیں تھی۔ اس کی ماں شمع کی بڑھاپے کی اولاد تھی وہ۔ شمع نے جوانی کے بچے کچے ایام میں ایک عام سے مڈل کلاس آدمی پہ ہی صبر شکر کر کے گھر بسا لیا تھا۔ اولاد تو تھی نہیں کہ کسی بیٹی کے بلبوتے پہ ہی اپنا کوٹھا آباد کرتی، اس لیے یہی غنیمت لگا کہ عمر کے اس حصے میں بھی کسی شریف آدمی کی بیوی بن کے گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس روکھی پھیکی گزارے لائق زندگی کو پہلا جھٹکا تب لگا جب شادی کے تیسرے سال ان کے ہاں رانی کی پیدائش ہوئی، جبکہ وہ ایسی کوئی بھی امید چھوڑ چکی تھی۔ اگر رانی بچپن میں ہی ذرا سی بھی خوبصورت ہوتی تو ضرور شمع کا دل للچا جاتا۔ وہ اس بڈھے بدصورت شوہر پہ لعنت بھیج کر طلاق لے کر دوسرے دن ہی کوٹھے پر آ جاتی، مگر لڑکی بالکل اپنے باپ پہ تھی۔ رانی 6 سال کی تھی جب اس کے باپ کی وفات ہوئی۔ 45 سالہ شمع جیسے تیسے گزارا کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ رانی کے جوان ہونے کا انتظار۔ اس نے اچھا والا مکان چھوڑ کے پچھلے محلے جانا گوارا نہ کیا۔ ویسے بھی اب وہاں کے لوگ عام رہائشی علاقوں میں دھڑلے سے آباد ہو چکے تھے، البتہ اس کے مراسم وہاں والیوں سے پھر استوار ہو گئے۔ گھر کا ماحول قریباً وہی تھا۔ رانی اسی ماحول کے اثرات لے کر بڑی ہوئی۔ اب وہ اپنی بچپن کی ان سہیلیوں کے ساتھ محفلیں سجانے لگی جو اس کی ماں کی سہیلیوں کی بیٹیاں تھیں۔ ایسے ہی کسی محفل میں اصغر سے ملی، اور وہ جی جان سے اس پہ فدا ہو گیا۔ حالانکہ وہاں موجود بہت سی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر دل کا کیا کیجیے، اصغر کا دل اسی پہ آ گیا۔ وہ گاہے بگاہے وہاں جانے لگا، تحائف کے ہمراہ۔ عیاش فطرت نہ تھا، بلکہ واقعی عاشق ہو بیٹھا تھا اس پہ، اس لیے شادی کا ذکر بھی کر بیٹھا۔ شمع شاید اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے حیران ہوئی۔ شادی؟ تم جانتے ہو لڑکے کیا کہہ رہے ہو؟ رانی میری اکلوتی بیٹی ہے، اور ابھی تو اس کا وقت شروع ہوا ہے۔ اس کی شادی کرنے کا مطلب پتہ ہے؟ میرا کباڑا۔ ایسا گھاٹے کا سودا؟ ہاں کوئی منافع بخش بات کرو تو سوچا بھی جائے۔ اصغر گڑبڑا کے رہ گیا۔ شمع سے اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہوئے یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ کس طرح کی صورت سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ طوائفیں بھی بیٹیاں دیتی ہیں، مگر ان شرائط پہ نہیں جن پہ شریف زادیاں بیاہی جاتی ہیں۔ جو آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا آنٹی جی، آپ کو تو پتہ ہے کتنا بڑا کاروبار ہے میرا، ذاتی گھر گاڑی۔ بس رہنے دو، تم اپنی چند لاکھ کی جائیداد کا روپ کیا ڈال رہے ہو؟ 25-30 لاکھ تو میری رانی ویسے بھی اگلے 2-3 سالوں میں مجھے کما کر دے دے گی۔ میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ تو ادھر کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں اسے؟ اور تم کیا جانو ہم جیسوں کو خوش کیسے رکھا جاتا ہے؟ آپ ایک بار رینا سے پوچھ تو لیں۔ اصغر کو آس تھی، وہ رینا کی خریدی ہوئی مسکراہٹ اور توجہ کو محبت سمجھ رہا تھا۔ اس کی اس بات پہ شمع کو ہنسی آ گئی، جس کو اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا۔ اصغر کے بارے میں اپنی بیٹی کے اصل خیالات سے وہ بخوبی واقف تھی، پھر بھی اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بات کروں گی۔ یہ بات کان کھول کے سن لو، وہ راضی بھی ہوئی تب بھی میں سارا نفع نقصان ذہن میں رکھ کے ہاں کروں گی، اور ہاں تم اپنی طرف سے رانی سے ایسی کوئی بات نہ کرنا، ورنہ سارا معاملہ بگاڑنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس نے دھمکی دی۔ دراصل اسے ڈر تھا کہ اصغر سے شادی کی پیشکش کا سن کر رانی بدک نہ جائے۔ وہ پہلے ہی اس احمق عاشق سے خار کھاتی تھی،
माँ के रोब में बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन असगर को वाकई उम्मीद बन गई। जो भी है, शादी तो रीना से ही होगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या है ये कारोबार, ये दुकानें, ये पैसा, ये घर, सब उसके नाम कर दूंगा अगर वो ज़िंदगी मेरे नाम कर दे। वैसे भी शादी जिससे होगी मेरा सब कुछ उसका ही हो जाएगा, तो रीना क्यों नहीं। जैसे जैसे उसका पेट भरता जा रहा था, वो अपने इरादे को मज़ीद पुख्ता करता जा रहा था। रीना उस वक्त जाफ़र महमूद के हमरा एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठी थी। नेवी ब्लू साड़ी उसने बड़े स्टाइल से बांध रखी थी, जो उसके बेहद कातिल तनासुब वाले फिगर पे जच रही थी। यह रंग भी उसकी दबती हुई रंगत को निखार रहा था। कानों में उसने नीलम के वो टॉप्स पहन रखे थे जो कुछ देर पहले जाफ़र महमूद ने उसे दिलाए थे। यह साड़ी भी पिछली किसी मुलाकात का तोहफा थी, दूसरे बहुत से तहाइफ की तरह। आप कभी मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जाते? रीना ने जाफ़र को बड़ी खुली डुली ऑफ़र की। रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर पे होने वाली गुफ्तगू, 1.5 घंटा की मुलाकातों से उसकी तसल्ली ना होती थी। घर वो किस लिए भाई, क्या ज़रूरत है, मिल तो लेते हैं हम। वो ज़रा सा घबरा गया, फिर सिगरेट एशट्रे में मसलता हुआ कुछ संभल के कहने लगा, ओए इतना डरते क्यों हैं आप तो यहाँ अकेले रहते हैं ना, आपकी फैमिली तो इस्लामाबाद होती है। हाँ, मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने घर ले जाना नहीं चाहता, यह मुनासिब नहीं लगता। उसके बाद रीना को हवाओं में उड़ाने लगी। वो कोई ऐसी भोली बीबी या पारसा भी न थी। उसके साथ अकेले घर जाने की फरमाइश उसने कुछ सोच समझ के ही की थी। वो अपने और जाफ़र के दोस्ताना ताल्लुकात को अब कोई नया मोड़ देना चाहती थी, कोई बहुत ही जज्बाती मोड़। मगर उसकी तवक्को के बरअक्स जाफ़र ने उसे अपने घर ले जाने से माजरत कर ली। उसे बुरा लगा, मगर उसकी वजह जानकर उसका सारा गिला जाता रहा। उसे लगा आज जाफ़र महमूद जैसे नफीस, इज़्ज़तदार और पढ़े लिखे इंसान ने उसे एक बाजारी औरत समझने की बजाय जो एक बाइज़्ज़त औरत वाला एहतराम दिया है, उसके बाद वो यकीनन अपनी मंजिल को पा लेगी। पहले सिर्फ पसंदीदगी का इजहार हुआ था, अब वो मेरी इज्जत भी करता है, मेरी यानी रीना की, जिसे पता ही नहीं कि इज्जत की कैसे जाती है। जब वो मुझ जैसी लड़की को इज्जत दे सकता है तो मोहब्बत क्यों नहीं। वो दिन दूर नहीं जब ये शख्स मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा होगा, मेरा साथ तलब कर रहा होगा। उसी दिन का तो इंतज़ार है मुझे, वो मसरूर होकर सोचने लगी। जाफ़र महमूद से उसके बढ़ते ताल्लुकात, बाकायदगी से मिलना मिलाना, ये सब उसकी शौरी कोशिशों का नतीजा था। वो जान गई थी जाफ़र के मिजाज में कितनी नफासत, शाइस्तगी और वक़ार है। वो उसके सामने शाइस्तगी के साथ आती थी। रफ्ता रफ्ता वो उस आम सी शक्ल सूरत मगर पुरकशिश, सरापा और मुकम्मल जहानत रखने वाली लड़की का असीर होने लगा था। बेशक ये सब रीना बहुत सोच समझ के कर रही थी, मगर यह भी सच था कि जाफ़र महमूद सिर्फ एक ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो हर तवाइफ उम्र के एक हिस्से में ज़रूर देखती है, यानी एक मालदार, साहब हैसियत, साहब जायदाद और इज़्ज़तदार शख्स के नाम का हवाला पाकर मोतबर होने का ख्वाब। जाफ़र महमूद भी अब उस ख्वाब से बढ़ के बहुत कुछ हो चुका था। वो शिद्दत से उसे चाहने लगी थी। हर नया दिन उस शिद्दत में इजाफा कर जाता, नई मुलाकात उस मोहब्बत को दो आतिशा कर जाती। जितनी ये मोहब्बत ज़ोर पकड़ती जा रही थी, जाफ़र को पाने की तलब भी उतनी ही मोज़ोर होती जा रही थी। क्या सोच रही हो? जाफ़र ने एक और सिगरेट सुलगाते हुए उसे देखा। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। जो मैं सोच रही हूँ वो कैसे कह दूँ? उसने आहिस्ता मगर शोख आवाज़ में कहा तो जाफ़र का दिल धड़क उठा। उसे रीना की ये मोहताज सी बेबाकी, बाअदब सी शोखी तो पसंद थी। कह दूँ क्या? रीना ने सरगोशी की। वो आगे को झुका और उसकी जज्बे लुटाती आंखों में झांका। कुछ बातें अनकही रहने दो, अच्छा लगता है। हर बार वो उसकी किसी न किसी अंदाज में की हुई पेशकदमी पे यूं ही बंद बांध दिया करता था और रीना हमेशा झिझक कर चुप हो जाती। यह झिझक भी जाफ़र की बारोब शख्सियत को सामने पाके उसके अंदर ऊद कर आती, वरना वो ऐसी कहाँ थी। वो मर्द होके इतने मोहतात, इतने बाअदब हैं, अपनी औरत को इतना खुला हुआ देखना पसंद नहीं करेंगे। मुझे फ़िलहाल उनकी पहल का इंतज़ार सब्र के साथ करना होगा, वरना मुझे लैला, सोनी और बरखा की सफ़ में खड़ा करने में वो एक पल की देर नहीं लगाएंगे। यही सोचकर वो दिल की बात होंठों तक लाते लाते रह जाती। दूसरी जानिब जाफ़र ने भी शायद ये तय कर रखा था कि वो रीना को इस ख़ास हद से बढ़ने नहीं देगा, ये हद जो उससे दोस्ती के नाम पे खुद आयद कर रखी थी। जाफ़र मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था और अब अपनी आला सरकारी मुलाजमत की वजह से अपर क्लास कहलाता था। उसके ख़ानदान का माहौल तालीम याफ्ता मगर रवायती था। बाज़ के यहाँ अब तक पर्दे की पाबंदी होती थी। वो को एजुकेशन में भी ना पढ़ा था, इसलिए सिनफ़े नाजुक से दोस्ती का अरमान ज़रूर रहा,
مگر پورا نہ ہو سکا۔ اب کلاس امپروو کر جانے کے بعد اس کا حلقہ احباب بھی تبدیل ہوا، مگر اسلام آباد میں اپنی فیملی کے درمیان رہتے ہوئے وہ ایسی دوستیاں کھلے عام افورڈ نہ کر سکتا تھا۔ لاہور میں اکیلے رہنے کا موقع ملا، چند بے فکر دوستوں کی بدولت رینا سے بھی ملاقات ہوئی تو برسوں پرانی خواہش انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ کسی حسینہ سے فلرٹیشن کا تجربہ حاصل کرنے کی خواہش، جو شاید ہر مرد کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقدار میں ہوتی ہے، کہیں بڑھ کے ہوس اور عیاشی تک جا پہنچتی ہے، اور کہیں جعفر کی طرح صرف وقت گزاری کی بے ضرر سی تمنا۔ زیادہ بازاری ناز و ادا اور کھلا پن اس کی نفیس فطرت اور ذوق پہ گراں گزرتا تھا۔ دوسری جانب اپنی فیملی اور دوسرے ملنے ملانے والوں میں پائی جانے والی گھریلو، سادہ اور جھجکتی شرماتی خواتین میں بھی وہ کوئی کشش محسوس نہیں کرتا تھا۔ رینا کی صورت میں اس کی وقتی تسکین ہو رہی تھی۔ وہ شوخ اور بے باک ضرور تھی، مگر چھچوری اور بھوندی حرکتیں کرنے والی کوئی عام بازاری لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اب جعفر کی شامیں خوشگوار گزرنے لگی، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی پارک میں، کبھی لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے تو کبھی شاپنگ کرتے ہوئے۔ اس شہر میں اس کے جاننے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے اسے کوئی خوف بھی نہ تھا۔ آج کل وہ 32 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر والی تازگی محسوس کر رہا تھا، مگر کچھ دنوں سے رینا کے انداز اسے چونکانے لگے تھے۔ شاید وہ اس دوستی، اس ہلکے پھلکے فلرٹ کو کسی اور رشتے یا کسی اور تعلق میں بدلنا چاہتی تھی۔ یہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے کہ اسے رینا سے صاف الفاظ میں بات کرنی پڑے۔ جب تک معاملہ چل رہا ہے چلنا چاہیے۔ دوستی کی صورت میں وہ کبھی بھی اپنی راہیں الگ کر سکتا ہے، واپس اپنے شہر لوٹتے ہوئے آرام سے بائے بائے کر سکتا ہے، مگر محبت اگر رینا نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا تو مصیبت ہو سکتی تھی۔ پرسوں میں تم سے نہیں مل سکوں گا۔ اس بار اس نے ویکنڈ ساتھ گزارنے سے معذرت کر لی۔ وہ کیوں؟ اپنے گھر جا رہے ہیں کیا؟ نہیں، کچھ دوستوں نے مل کر شکار پہ جانے کا پروگرام بنایا ہے، ساتھ تو دینا پڑے گا، آخر دوستی کا معاملہ ہے۔ اور یہاں معاملہ کون سا ہے؟ رینا نے بڑی آس سے پوچھا۔ شاید جواب ملے گا دل کا، مگر وہ صاف کرنی کترا گیا۔ یہاں معاملہ مزاج آشنائی کا ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ کا۔ تم تو میری بات سمجھ سکتی ہو، ضد نہیں کرو گی، نہ ہی ناراض ہوگی، مگر ان دوستوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ رینا کا موڈ ہو رہا تھا ناراض ہونے کا، مگر جعفر کے مان بھرے انداز پہ وہ چپ کر گئی۔ اس کا مزاج آشنائی اور انڈرسٹینڈنگ کا دعویٰ خود کیسے جھٹلا دیتی۔ بس یہ خالی ٹاپس؟ شمع نے ہاتھ پہ نیلم جڑے ٹاپس اچھالے جیسے ان کا وزن کر رہی ہو، اور ناک چڑھائی۔ مشکل سے 1.5-2 تولے کے ہوں گے، ساتھ میں کوئی ہار انگوٹھی کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لینا تھا تو پورا سیٹ لیتی۔ اس کی قیمت اس کے 2 تولے سونے میں نہیں، اس میں لگے ان ذرا ذرا سے پتھروں میں ہے، مگر تم یہ سب کیا جانو۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے چپٹ کر دوبارہ کانوں میں پہن لیے۔ سب جانتی ہوں میں، یا تو وہ لونڈا تجھے الو بنا رہا ہے یا پھر تم مجھے الو بنا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو وہ تجھے بیوقوف بنا رہا ہے یا پھر تم مجھے وہ سب دکھانا نہیں چاہتی جو اس سے بٹورا ہے، اسے اپنے پاس دبا کے رکھنا چاہتی ہے۔ یہی بات ہے نا؟ اس نے ٹٹولتی نظروں سے بیٹی کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھا، جہاں آج کل ایک انوکھی سی چمک تھی، اور شمع کے محدود تجربے اور علم کے مطابق چہرے پہ چمک صرف مال سے ہی آتی ہے۔ اس کے کہنے پہ ہی تو محفلے سے جانا چھوڑے بیٹھی ہے، ایک فون آتا ہے اور بھاگ جاتی ہے اس کے پاس، کئی گھنٹے گزار کے آتی ہے۔ ایسے ہی تو کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ خوب نواز رہا ہوگا تجھے، مگر تو کمینی، یہ ساڑی، یہ بندے، یہ ٹکے ٹکے کی چیزیں مجھے دکھا دیتی ہے، اصل مال کو ہوا نہیں لگنے دیتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نہیں مانتی تو نہ مانو، میرا کیا جاتا ہے۔ اس نے خاص پرواہ نہ کی اور ساڑی کا پلو سمیٹتی اٹھ گئی۔ اس کے ہر انداز سے سرشاری اور بے نیازی چھلک رہی تھی۔ اگر تیری بات مان بھی لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبیث انسان تجھے الو بنا رہا ہے۔ یہ آج الو کیوں سوار ہے تمہارے ذہن پہ؟ وہ بار بار کی تکرار سے اکتا گئی۔ جو نظر آ رہا ہے وہ کہوں گی۔ یہ تیرے کمانے کے دن ہے۔ زندگی کے مزے لوٹنا ہمارا مقصد نہیں، بلکہ زندگی کے مزے لوٹنے والوں کو لوٹنا ہمارا پیشہ ہے، سمجھی؟ اب اپنی یہ تفریح، یہ مزے، یہ سیر سپاٹے، یہ عاشقی معشوقی، ان سب کو لگام دے اور سیدھی طرح کام پہ دھیان دے۔ کتنی بار کہا ہے میرے سامنے یہ الفاظ مت استعمال کیا کرو۔ وہ چلا اٹھی۔ کمائی، پیشہ، ان کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تمہیں؟ اور تجھے جو ہری ہری سوج رہی ہے، دیکھنا کتنا خوار کرے گی تجھے۔
माँ हूँ तेरी, अच्छा बुरा समझाना मेरा फ़र्ज़ है। माँ मत कहा करो खुद को और ना किसी फ़र्ज़ की बात किया करो। पहले तो तू अपने काम और ज़िंदगी से इतनी बेजार नहीं थी, ये पट्टी भी उसी अफसर ने पढ़ाई होगी। देख रही हूँ जब से वो पल्ले पड़ा है तेरे मिजाज ठिकाने नहीं रहे, किसी काम जोगी नहीं रही तू। तो फिर लानत भेजो मुझ पर, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, अब मैं तुम्हारे किसी काम की जो नहीं। उसके मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया था शमा के एतराज़ात ने। कैसे छोड़ दूँ? औलाद है मेरी और वो भी इकलौती, मेरे बुढ़ापे का सहारा, कैसे बर्बाद होने दूँ? कोई बर्बाद नहीं हो रही मैं। पता नहीं तुम्हें जाफर से क्या चिढ़ है, फजूल फजूल से लोग आए तो उन पर निसार होती हो, हर गामे माजे से ताल्लुकात बढ़ाने की ताकीद करती हो, और जो जिंदगी में पहली बार जरा ढंग का बंदा मिला है तो वो खटकने लगा है। हमें ढंग के बंदे से नहीं, ढंग के पैसे से सरोकार है। शमा के पान से रंगे होंठों पे मकरू मुस्कुराहट फैली। ये गामे माजे खुली शलवारें पहनने वाले, मैली गर्दनों और फटी एड़ियों वाले जो बात बात में नंगी गालियां देते हैं, जिनको तू बुरा कह रही है, उनसे ही हमारे ठाट बाट हैं। कम से कम उनके हाथ जेब में जाते हैं तो भरे हुए तो निकलते हैं। नवाब, जागीरदार, जमींदार, सियासतदान, ये हमारी जैसियों के नसीब में कहाँ। ये तो ऊंचे दर्जे की कोठी वालियों ने बुक किए हुए हैं। हमारे नसीब में ये नए नए अमीर हुए या नए नए जवान हुए गामे माजे ही रह जाते हैं। उफ, रीना सर पकड़कर तकिए पर गिर गई। वो लिबास तब्दील करके बाथरूम से भी निकल आई थी, मगर शमा की वही रट अभी तक जारी थी। अब वो क्या बताती माँ को कि ये तहफ़ भी वो खुद ही ले देता है, वरना असल में तो उनके दरमियान लेने देने वाली कोई बात ही नहीं हुई। उसके बारे में जो जज्बात रीना के दिल में थे, शायद वो मुआवजा तय करने में आड़े आते थे। उसका बस चलता तो जाफ़र महमूद की मोहब्बत पाने के सदके वो अपना आप उस पर निछावर कर डालती, बिन मोल उसकी बन जाती। मगर शमा का मुंह बंद रखने के लिए वो जाफ़र के अक्सर व बेशतर शॉपिंग कराने की मेहरबानी को कबूल कर लेती, और शमा की तसल्ली उस पे भी ना हो रही थी। अच्छा चल, इतना ही दिल आ गया है उस पर तो ठीक है, लगी रह, तेरी उम्र भी ऐसी है, आखिर जवानी मुझ पे भी आई थी। वो बेटी के पास लेट के उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। रीना ने सुकून से आंखें मूंद ली और शिद्दत से यह ख्वाहिश की कि माँ की उंगलियां उसके बालों में ही फंसी रहें, मगर वो खुद गायब हो जाए अपनी नसीहतों समेत। लगता है वो अफसर ज्यादा ही गबरू है ना? उसने रीना को गुदगुदाने की कोशिश की। वो कसमसा के करने लगी, मगर उसके लबों पे फैली मुस्कुराहट माँ के कियास की तस्दीक कर रही थी। शमा ने यह दोस्ताना रवैया उसके अंदर के राज उगलने के लिए ही अपनाया था। अब वो बेटी के चेहरे पे मोहब्बत के रंग देखकर दांत कचकचा रही थी। तू दोस्ती उससे लगाए रख, मैं मना नहीं करती, मगर अपने काम को ख़राब ना कर। क्या वो तेरे लिए अपने दफ्तर में हाजिरी लगाना छोड़ सकता है? कभी भी नहीं। वो क्यों अपनी मुलाजमत गवाएगा? फिर तुझ पे रोक टोक किस लिए? मैंने कब कहा कि उसने मुझे रोका है? बस मेरा दिल ही नहीं चाहता। दिल को समझा, वरना उसने पैंतरा बदलना चाहा, मगर फिर मसलहतन दोबारा लहजे में रस घोल लिया। वरना ये दिल तुझे बड़ा ख्वार करेगा, ऐसी जगह दिल लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? वैसे एक बात कहूँ, दोस्ती ही करनी है तो असगर क्या बुरा है? वो तो गामा माजा नहीं लगता, शक्ल सूरत भी ठीक है, पीता पिलाता भी नहीं, आशिक है तुझ पे, उसी को देख ले। वो बेटी के जज्बात को टटोलने लगी। दफा, वो भी कोई इंसान है, लीचड़ लसूड़ा, मुंह खोल के देखता रहता है। रीना के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। ना पढ़ा लिखा है, ना ही दिमाग है उसका, भूसा भरा हुआ है खोपड़ी में। ना तो पढ़ा लिखा के क्या तूने मुंशी लगवाना है? और जब थोड़ा बहुत पढ़ के भी वो महीने के 1,00,000-2,00,000 कमा सकता है तो बेवकूफ़ कैसे हुआ? मर्द का दिमाग पैसा कमाने में चले तो ठीक है, और मामलों में ना ही चले तो अच्छा। और औरत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। जो मर्द खोपड़ी में भूसे की बजाय अकले लिए फिरते हैं, वो पैसा उजाड़ने जोगे नहीं होते। हमें भूसा बड़ी खोपड़ियाँ ही वारा खाती हैं। हाँ ठीक है, माना कि असगर दूसरों की निस्बत अच्छा है। कम अकल और च्युइंगम की तरह चिपक जाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, मगर असगर को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लेती हूँ कि वो दूसरों की तरह पैसे निछावर करने के बाद मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझने लगता। मगर मगर किसी को मजबूरन बर्दाश्त करना और बात है, किसी को पसंद करना और बात, और किसी से दिल लगा लेना बिल्कुल ही अलग बात। इस जैसे बेवकूफ़ और कम इल्म कम अकल इंसान से तो मैं झूठ मूठ की मोहब्बत भी नहीं जता सकती। ज़्यादा बातें ना बना,
जैसे मैं तो अभी अभी पैदा हुई हूँ। शमा ने हाथ नचा के कहा, तेरी तरह किस्से कहानियों की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ रखी, मगर मोहब्बत के बारे में इतना तो तेरी माँ भी जानती है कि इस काम में अकल का क्या दखल, ये तो काम ही बेअकली का है। उसने भोंदेपन से आंख मारी, जिस पे नागवारी महसूस करते हुए रीना ने मुंह पे चादर तान ली। मुझे नींद आ रही है। ज्यादा मकर न कर, कोई इश्क विश्क नहीं हुआ मुझे, जान छोड़ो मेरी। चादर के अंदर से अपने बंदे हाथ निकाल के रीना ने इल्तिजा की। उसका दिमाग शमा ने अपनी बातों से पिलपिला कर दिया था और अब उसे वाकई सुकून की ज़रूरत थी। ये क्या कर रही हो? मजहर ने मुनज़्ज़ा को बैकयार्ड में वॉशिंग मशीन लगाए ढेरों ढेर कपड़ों के दरमियान खड़े देखकर पूछा। कपड़े धो रही हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर तुम क्यों धो रही हो? मुलाजमा कहाँ है? 4 दिन की छुट्टी पे गई थी, आज 7वां दिन है। एक ढेर जमा हो गया था कपड़ों का, दर्जनों तो सोहा के हैं। इतनी सी बच्ची दिन में कई बार कपड़े गंदे कर देती है। आपको भी दिन में 2 बार तब्दील करना होते हैं। उसके इंतज़ार में बैठ गई तो इसका मतलब है कि पिछले 6-7 रोज से घर के सारे काम तुम कर रही हो। किचन की जिम्मेदारी तो पहले ही तुम्हारे सर पर है। नहीं, बराबर वालों की मासी रोज़ाना आकर सफाई कर देती है। अलबत्ता कपड़ों की धुलाई से उसने माजरत कर ली थी, और रहे बर्तन वगैरह तो धुल जाते हैं मिलजुल कर। अच्छी तरह जानता हूँ कितने मिलजुल कर धुलते हैं। मजहर ने ज़रा यकीन ना किया। और इस ढेर में मुझे अपने, तुम्हारे और सोहा के कपड़ों के अलावा अम्मी और शमीम के भी कई एक कपड़े नज़र आ रहे हैं। ये पैंट असगर की है और ये शर्टें भी। ये दोनों शलवार सूट अब्बाजी के हैं, और ये पर्दे ये भी मेरे ख्याल में। मेरे साथ कर ये सारा हिसाब किताब मोहल्ले वालों को क्यों सुना रहा है? शमीम ने मजहर को पिछली जानिब जाते देखकर नुसरत को खबर देने में देर न लगाई थी, और नुसरत ने भी ऐन मौके पे छापा मारने में तवक्कुफ न किया। अगर धुलाई सारे घर के कपड़ों की हो रही है तो शमीम को भी साथ लगना चाहिए था। ये अकेली क्यों धोबी घाट खोल कर बैठे? या फिर मुलाजमा के आने का इंतज़ार कर लेना चाहिए था? इंतज़ार ही कर रहे हैं 1 हफ्ते से। मैंने नहीं कहा था नवाबजादी को कि मशीन लगाए, इसने अपनी मर्जी से लगाई है, बगैर मुझसे पूछे। हाँ, और अपनी मर्जी से ही ये सबके कमरों से मैले कपड़े भी इकट्ठे करके लाई है, बगैर आपसे पूछे। मजहर मुनज़्ज़ा के इशारों को खातर में ना लाते हुए तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा था। इसने अपनी ज़रूरत के तहत मशीन लगाई होगी। और शमीम ने ला कर ढेर लगा दिए, पर्दे तक उतार के फेंक दिए। वो बहन की आदत से वाकिफ था, इसलिए बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। परे करो ये सब, उसने मुनज़्ज़ा को गरज कर कहा। 4 दिन और मुलाजमा ना आई तब भी गुजारा हो सकता है। कपड़ों की कमी नहीं है इनके पास। क्या हो गया है मजहर? उसे वाकई ये बात पसंद न आई। बाज़ औक़ात मजहर बहुत ही बेबुनियाद बातों पे भड़क उठता था। अपने घर का काम ही कर रही हूँ, इन सब के कपड़े धोने से क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर मैं इनकी बेटी जैसी हूँ, और जो हकीकी बेटी है उसको तो बड़ा फ़र्क पड़ता है हिल के पानी पीने से भी। तुम्हें मेरी बड़ी तकलीफ है, घड़ी घड़ी मुझको कोसने लग जाते हो अपनी इस सगी के कलेजे में ठंडक डालने के लिए। शमीम अब तक अंदर खड़ी सुनगुन ले रही थी, तड़प के सामने आई। जिसने माँ को मिनट में पराया कर दिया वो बहन को क्या समझेगा? इस एक्टिंग ने गालबन मजहर को भी कुछ कुछ मुतासिर कर दिया। उसका तैश धीमा हुआ। तुम अम्मी के कपड़े धो लो, वो माँ है, उनकी खिदमत करने में कोई मजायका नहीं, मगर शमीम के अपने हाथ पैर सलामत हैं। उसका ढेर उसे वापस करो, चाहे धोए या फेंके। बाकी ये कपड़े, ये पर्दे, ये सब कुछ लॉन्ड्री भिजवा दो। इतने भारी कपड़े तुम कैसे धोगी? माँ पे भी इतना एहसान करने की क्या ज़रूरत है? नखरे तो ऐसे उठाए जा रहे हैं महारानी के, जैसे 10 नौकरों से उठ के आई हो। अपने घर चाहे मशीन पे धोना भी नसीब ना होता हो, डंडे से कूट कूट के और ब्रश से रगड़ रगड़ कर धोती होगी। नुसरत बड़बड़ाती अंदर पलट गई। तुमने अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से सबकी आदतें ख़राब की हुई हैं। अब उसकी नाराज़गी का रुख मुनज़्ज़ा की तरफ था। वो चुपचाप अपना काम करने लगी। अब आप असगर की शादी भी कर ही दें, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी कोई होना चाहिए। कब तक माँ और भाभी के सहारे ऐश करता रहेगा? अंदर आके उसने रिमोट उठाते हुए माँ को मशवरा दिया। ऐश कराता भी तो है, तुम तो चंद हज़ार किचन के खर्चे के लिए देते हो। बिजली के इतने बड़े बड़े बिल, नौकरों की तनख्वाहें और बाकी के खर्चे, ये सब वही पूरे करता है। कौन सा पल्ले से करता है? अब्बा जी का जमा जमाया कारोबार है, मुझे सारी खबर है।
महीने में 1.5 लाख तक आमदनी होती है, कभी इससे भी ज़्यादा। 40-50 हज़ार भी अगर यहाँ लगा देता है तो फ़ायदे में है। मेहनत भी उसकी है। नुसरत की सारी हमदर्दियाँ असगर के साथ थी। इससे मुझे इनकार नहीं, मजहर ने फराख दिली से इतराफ़ किया, और इसीलिए कभी ऐसा हिसाब नहीं किया। मगर मैं उसकी कमाई के रोब में आने वाला नहीं। और ऐसा बुरा क्या कहा है मैंने? उसकी शादी करने का ही कहा है। बड़े के बाद अब छोटे की शादी का जिक्र। शमीम पहलू बदलने लगी। मैं क्यों अपना बुढ़ापा ख्वार करूं? मैं क्यों करूं उसकी शादी? कर लेगा वो भी खुद ही, तुम्हारी तरह। ले आएगा कोई हूर परी मेरे सर पे बिठाने के लिए। कुछ देर पहले असगर की हमायत में बोलने वाली नुसरत के लहजे में अब शिकवे थे। यानी उसने कोई पसंद कर ली है। मजहर को खुशगवार हैरत हुई। उसका ख्याल था कि असगर सिर्फ 2 को 4 बनाने में ही दिलचस्पी रखता है। ये ना पता था कि अपनी ज़िंदगी बनाने का ख्याल भी उसे आ गया है। उसने असगर से खुल के बात करने का फ़ैसला किया। कोई ख़ास बात है? असगर ने उसके कमरे में बुलाकर बात करने पर हैरान होते हुए पूछा। हाँ है तो ख़ास बात। सुना है तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले हो। मजहर के तुक्के लगाने पे असगर घबरा गया और नज़दीक खेलती सोहा को गोद में उठा के गुदगुदाने लगा। मजहर उसकी हरकत से समझ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। सोहा चाचू के साथ जॉयलैंड जाएगी, आइसक्रीम खाएगी, पारा पारा फ्रॉक लेगी। चलो जी। सोहा से वो वाकई प्यार करता था, मगर इस वक्त सिर्फ मजहर के अगले सवाल से बचने के लिए सोहा के बहाने निकलने के चक्कर में था। जाएगी, ज़रूर जाएगी। मजहर ने उसे खिसकने न दिया और पकड़कर दोबारा अपने सामने बिठा लिया। आइसक्रीम भी खाएगी, फ्रॉक भी खरीद लेगी, मगर पहले चाचू का पोल खोलेगी। पोल? असगर का रंग उड़ गया, जिस पे मजहर खटका। वो कोई 16-17 साल नोखेज लड़का न था जो गली मोहल्ले में शुरू किए किसी मुआशके की खबर घर तक पहुंचने पे घबरा रहा था। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कहीं डाका डाला हो, जिसकी मुखबरी मैं करने वाला हूँ। अबे प्यार किया तो डरना क्या? अपने बड़े भाई से सबक हासिल कर। उसने बेतकल्फी की फिजा पैदा करते हुए उसकी झिझक ख़त्म करना चाही। असगर कुछ शर्माता, कुछ खिसियाता उसे देखने लगा। मजहर का सेहतमंद खुशबाश चेहरा, खिली खिली मुस्कुराहट, जगमगाती आंखें, सलीके से सजा कमरा जिसका कोना कोना मकीनों की मोहब्बत का गवाह था। बेड पे बैठी खिलौनों से खेलती एक 2 साल प्यारी सी बच्ची, चाय की ट्रे लेकर अंदर आती एक तालीम याफ्ता सुलझी हुई हसीन शरीक हयात। सब कुछ कितना मुकम्मल था और काबिल रश्क था। उसके दिल में अपनी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ करने की ख्वाहिश और भी कवी हो गई। वो मुनज़्ज़ा के रूप में रीना को और मजहर के रूप में ख़ुद को देख रहा था। कौन है वो? मजहर ने टटोला। वो रीना नाम है उसका। कान खुजाते हुए असगर ने कहा, साथ ही कनखियों से भाभी की तरफ देखा। नाम तो खूबसूरत है। क्यों मुनज़्ज़ा? और ख़ुद कैसी है वो? अच्छी है। अम्मी क्या कहती हैं? अभी कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई। तो बात कर यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? देर करते रहे तो अम्मी ले आएंगी ख़ानदान की किसी बानो या सुरैया को, जो शमीम से भी 2 हाथ आगे होगी। घर घर नहीं, पानीपत का मैदान बन जाएगा। तुम्हें तो पता ही होगा हमारे ख़ानदान में कैसी कैसी रज़िया सुल्तानाएँ और झांसी की रानियाँ हैं। यार मेरी बीवी बेचारी मस्कीन, इसका क्या बनेगा? ऐसी ख़ानदानी हलाकू देवरानी तो इसे चुटकी में मसल देगी। हिम्मत करो और अम्मी को बता दो। डर लगता है। मर्द बन यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मजहर ने हौसला दिया। असगर ने नज़र उठाकर उसे देखा और तस्दीक चाही। वादा? और अगर बाद में पीछे हट गए तो? मैं तुम्हें पीछे हटने वालों में से लगता हूँ? ऐसा होता तो आज मुनज़्ज़ा मेरे साथ ना होती। इसके लिए क्या अम्मी और शमीम ने कम फड्डा किया था? 100 एतराज़ थे उनके। वो एतराज़ अलग थे, मगर रीना, मैं जानता हूँ अम्मी कभी नहीं मानेंगी। ऐसी क्या बात है? साफ साफ क्यों नहीं बताते? अब मजहर को भी किसी संगीनी का एहसास हुआ। उसका अंदाज़ा था शायद मुनज़्ज़ा के मेके वालों से भी गए गुजरे ख़ानदान से होगी। क्या पता कोई जॉब वगैरह करती हो, क्योंकि नुसरत के ख्यालात मुलाजमत करने वाली लड़कियों के बारे में भी अच्छे नहीं थे। वो दरअसल रीना जो है ना, नहीं वो नहीं, असल में उसकी माँ। वो फिर रुक गया। हाँ क्या है उसकी माँ को? दूसरी शादी कर रखी है या मुतलका है? मजहर ने एक और अंदाज़ा लगाया। दूसरी शादी करने वालियों और मुतलकाओं के बारे में भी उसकी माँ नादिर शाही फरमुदात नशर करती रहती थी। नहीं वो कोठे वाली है। क्या?
मजहर के लबों तक आता चाय का कप उछल गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कोठों पे आना जाना शुरू कर दिया? कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए जो दिल चाहे करते फिरोगे। अभी तक दोस्ताना अंदाज में गपशप करता वो एकदम भड़क कर उस पर आंखें निकालने लगा। असगर अगरचे छोटा था उम्र में, मगर घर का माहौल ऐसा था कि छोटों को बड़ों का लिहाज और डर, बड़ों का छोटों पर रौब कम ही नजर आता था। वो भी हरगिज उससे ना दबता और जवाबन आंखें निकाल सकता था। लेकिन ये मामला ऐसा था कि वो अकेला कमज़ोर पड़ रहा था। जानता था रीना की ख्वाहिश करके उसने कोई काबिल फ़ख्र या लायक तहसीन कारनामा नहीं अंजाम दिया। उसे अब हमायतियों की ज़रूरत थी, ना कि मुखालफिन की। मसलहत का तकाजा था कि मजहर की डांट टपट खामोशी से सुन ली जाए। इसके बरअक्स मुनज़्ज़ा शोहर के गैज़ो गज़ब पे डर गई। उसे ख़तरा था कि अब तक मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते दोनों भाई अचानक गुत्थम गुत्था ना हो जाएं। तुम बाजारी औरतों के चक्कर में पड़े कैसे? रीना ऐसी नहीं है। वो तड़प के उठ खड़ा हुआ। अच्छा, उसकी माँ कोठे वाली है और वो खुद क्या ट्यूशन पढ़ाती है? किसी मदरसे में उस्तानी लगी हुई है? वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। आजकल तवाइफों में भी डिग्रियां लेने का रवाज है, कोई नई बात नहीं। वो मुतासिर ना हुआ। वो अपनी माँ से मुख्तलिफ है। हाँ, माँ ठुमरियाँ गाती थी, ये रिमिक्स गाती होगी। माँ मुजरे करती थी, ये डिस्को करती होगी। मजहर ने अपनी कसली जुबान के जौहर दिखाने शुरू किए तो असगर बर्दाश्त ना कर सका। बस करो, मैं ज़्यादा बकवास नहीं सुनूंगा। अब भी तो तुम पता नहीं क्या कुछ सुनोगे अम्मी से, अब्बा जी से, सारे ख़ानदान से, हर मिलने वालाने वाले से। ये बात ज़रा मुंह से निकाल कर तो देखो। उसने चैलेंज किया। तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, कहा था कि मेरा साथ दोगे। असगर ने फिर इल्तिजाया अंदाज इख्तियार किया। हाँ, कहा था। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की जगह कराने में तुम्हारी मदद करने का वादा किया था। ये नहीं कहा था कि घर में तुम किसी भी तवाइफ की लड़की को ला के बिठा दोगे तो मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं हुई गधे, तुम किसी गलत जगह फंस गए हो तो बेवकूफ़ ही। अब ये बेवकूफ़ सबको बताएगा कि वो असल में है क्या। असगर ने गला फाड़ के ऐलान किया। सोहा सहम के रोने लगी तो मुनज़्ज़ा ने फ़ौरन उसे गोद में उठा लिया। वाकई गधा था मैं, जो इतने सालों से सारे टब्बर का बोझ ढोता रहा। मेरी खुशी का वक्त आया तो कोई हाथ आगे नहीं कर रहा, नहीं तो ना सही। मैं भी अब गधा बन के इतने लोगों का बोझ नहीं उठाऊंगा। अपनी अपनी करें सब, और मैं भी अपनी करूंगा। रीना का इश्क उसके सर चढ़ के बोल रहा था, इसीलिए वो उसकी जानिब से शादी का इकरार सुनने से पहले ही एक तरफा जंग लड़ने लगा। ये पागल हो गया है। उसके निकलने के बाद मजहर ने मुनज़्ज़ा को मुखातिब करके कहा, आप प्यार से समझाते तो शायद। रहने दो, ये उल्टी खोपड़ी है, आराम से कुछ समझ में नहीं आता। अम्मी एक झटके में टाइट कर देंगी। लेकिन आपने सुना उसने क्या धमकी दी है? अम्मी का सारा रोब दबदबा एक तरफ, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनके बेशतर खर्चे असगर ने उठा रखे हैं। अगर उसने वाकई हाथ खींच लिया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। सारा बिजनेस उसके हाथ में है, अमली लिहाज से भी और कानूनी तौर पे भी। मेरा ख्याल है अम्मी ये धमकी कबूल नहीं करेंगी। शमीम को ब्याहना है अभी, और इसके लिए सालों से जमा हो रहा जहेज़ और ढेरों सोना असगर से लेकर ही बन रहा है। ये मसला भी गौर तलब है, मगर एक तवाइफ की बेटी, ये बात हजम नहीं हो रही। क्या पता वो लड़की किरदार की कैसी हो, शायद खुद भी इसी पेशे से मुंसलिक हो, या असगर इस बात से अनजान हो, या हमें अनजान रखना चाह रहा हो। जो भी है, आप इस मसले से अलग रखें खुद को। मुनज़्ज़ा ने नसीहत करना फ़र्ज़ जाना, हालांकि वो इस हकीकत से भी आगाह थी कि मजहर ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। साजदा को गुजरे 9 दिन बीत चुके थे। घर का अब तक वही माहौल था। शमशाद के ज़्यादातर अजीज़ व अकारब दूर दराज के शहरों के रहने वाले थे। उन्होंने तो गोया यहाँ डेरे डाल लिए थे। गालबन 10वें का ख़त्म शरीफ करवा के वापस लौटने का इरादा था। आधे दिन तक नाश्ते चलते रहते, एक शोर सा बपा रहता। अजीब अबतरी और अफरा तफरी का सा आलम था। ये सब देख के परवीन का दम उलझता। वो अपने घर के पुरसकून माहौल की आदी हो चुकी थी। यहाँ अगर रुकी थी तो सिर्फ भाई के लिए, जो संभल ही न पा रहा था। नन्ही सी बच्ची की जिम्मेदारी भी फ़िलहाल परवीन ने संभाल रखी थी। शाम होने लगती तो मोहल्ले के लोग और दूसरे मिलने जुलने वाले एक बार फिर ताज़ियत के लिए इकट्ठे होने लगते। वही मातमी फ़िज़ा कुछ देर के लिए कायम होती। 4 आंसू बहा के 2 सर्द आहें भर के वो गपशप में मशगूल हो जाती। कल 10वां है, साजदा के मैके वाले आएंगे या नहीं? मेरी जाती है जूती,
कुल पे तो आए नहीं, इतनी अकड़ है कंगलू में। शमशाद ने नाक चढ़ा के जवाब दिया। उसके भाई तो आए थे। आए होंगे, कोई एहसान किया था मुझ पे या मेरे बेटे पे। उनकी घरवालियां तो ना आई, उनको क्या मौत आई थी? सुना है तुमसे कोई खिटपिट हुई थी, किसी ने टो लेना चाही। खिटपिट क्या होनी है, वैसे ही मुंह छुपाती फिर रही हैं। साजदा बड़ी भोली थी, इनकी बातों में आके मर्द की कमाई छुप छुपा के दे तो देती थी मैके, पर मुझे बाद में बता देती थी। मेरे पास सारा हिसाब है कि बहानों से ये साजदा से कितना पैसा बटोर चुके हैं। और पिछले महीने साजदा की भाभी के पिछलों में किसी की शादी थी, वो नंद से ही लेकर गई थी सारा जेवर, वरना उसके पास तो चांदी की तार तक नहीं थी। अब साजदा नहीं रही तो नीयत बदल गई होगी उन लोगों की, दबा के बैठ गए हैं और मेरे मत्थे नहीं लगना चाहते। नहीं तो ना सही, मैंने अपनी पोती के सदके मुआफ किया। वैसे तो शायद कोई इस मनगढ़ंत कहानी पे यकीन कर ही लेता, मगर उसके इतनी आसानी से पैसा और जेवर बख्श लेने वाली बात पे सब जान गए कि ऐसा कुछ सिरे से हुआ ही नहीं। शमशाद वो औरत थी जो अगले के हलक में उंगली डालकर अपना माल निकलवा सकती थी। इधर शमशाद अपनी हम मिजाज औरतों के दरमियान महफिल सजाए बैठी थी, उधर परवीन चंद दिन की कमज़ोर नाजुक सी बच्ची को हाथों में लिए दुख भरी नज़रों से देख रही थी। कल ये शायद परसों उसे वापस अपने घर जाना था। उसके अपने बच्चे, अपना घर उसका मुंतज़िर था, वहाँ भी उसकी ज़रूरत थी। और इस नन्ही सी जान को भी तो ज़रूरत है किसी की। कौन इसका ख्याल रखेगा? अम्मा से कोई उम्मीद रखना फजूल है, और इसके ननियाल वालों से भी वो ख्वामुखा बिगाड़ चुकी हैं, वरना मिलजुल के कुछ हो जाता। ये शुरू के चंद साल मुश्किल थे, बाद में सब ठीक हो जाता। लेकिन ये शुरू के दिन, ये आखिर कैसे गुजरे? क्या बनेगा इस मासूम का? बाप है तो उसने अब तक नज़र भर के देखा तक नहीं अपनी औलाद को। कुछ सोचकर कंबल में लिपटी बच्ची को उठा के नवीद मुराद के पास ले आई। भाईजान, आपका दिल नहीं चाहता अपनी बेटी को देखने को? एक नज़र डाले तो सही, देखे ना कितनी प्यारी है, बिल्कुल साजदा जैसी। नवीद मुराद ने इन आखिरी अल्फाज पर रुख ही फेर लिया तो परवीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नादानिस्तगी में उसके गम को ताज़ा कर गई थी। इसे ले जाओ परवीन। कहाँ ले जाऊँ? ये इसका घर है, इसके बाप का घर, जहाँ इसे अल्लाह ने भेजा है। मैं कौन होती हूँ इसे यहाँ से ले जाने वाली? अल्लाह ने इसे अकेले क्यों भेजा है परवीन? नवीद मुराद कोहनी मोड़ के आंखों पर रखते हुए लेट गया। उसकी आवाज़ आंसू में भीगी हुई थी। अल्लाह की अल्लाह ही जाने। परवीन ने लंबी आह भरी और उसके नज़दीक बैठ गई। बच्ची को एहतियात से उसके बराबर में लिटा दिया। पुप्पी की गर्म आगोश से निकलते ही वो अपनी बारीक आवाज़ में रोने लगी। कंबल में लिपटे हाथ खोलने की कोशिश करने लगी। नवीद मुराद के अंदर कुछ तड़क तड़क करके टूटा। देखे तो सही इसे, एक बार तो देखें। आपका गम ख़त्म ना होगा तो कम ज़रूर होगा। देख तो ले कि अल्लाह ने आपसे आपकी एक अजीज़ चीज़ वापस ली है, तो कितनी प्यारी चीज़ दी भी तो है। नवीद मुराद ने भीगी पलकें खोली और गर्दन मोड़ के अपने पहलू में लेटे उस नन्हे मुन्ने वजूद को देखा। वो उठ के बैठ गया था और उसे बाजुओं में लेकर प्यार कर रहा था। बच्ची के रोने में और शिद्दत आ गई थी। इसका अब तक नाम भी नहीं रखा, कितनी बुरी बात है। साजदा होती तो नाराज़ हो जाती। कोई अच्छा सा नाम बताएं। साजदा को वशवा नाम पसंद था। उसने बच्ची की नरम पेशानी पे अपने लब रख दिए। सिराजुद्दीन बेगम शौकत जहां के बार बार एहसास दिलाने पे यहाँ आए थे और अब अपने साले नवीद मुराद के सामने संजीदा से बैठे थे। नवीद मुराद की हालत कतन ऐसी नहीं थी कि वो अपने इस आला हैसियत और नाजुक मिजाज बहनोई की खातर मदारत और आवभगत उसी अंदाज में करता जिस तरह पहले करता आया था। वो उसी अफसरदा हालत में सर निहाड़े बैठा था। दूसरी जानिब सिराजुद्दीन को भी रस्मी अदाब निभाने का ख़ास सलीका न था। उनकी समझ में न आ रहा था कि नवीद की बीवी की वफ़ात से लेकर अब तक, यानी 15वें रोज़ तक, वो उससे कमोबेश 6 बार मिल चुके हैं। हर बार ताज़ीती कलमात कैसे अदा करें? हर बार वही मुकालमे रट्टू तोते की तरह दोहराना कोई ज़रूरी भी नहीं। जब उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर परवीन नवीद मुराद को बुलाने जा रही थी, तब उसने चुपके से अपने मियाँ से कहा था, भाईजान को तरीके से संभाल लीजिएगा, उनके ज़ख्मों पे हमदर्दी का फाया। तब बात काटते हुए सिराजुद्दीन ने खुरदरे लहजे में अपना यही ज़ेरी कौल सुनाया था, जिसके बाद वो खामोशी से मुंह लटका कर चली गई और अभी तक दोबारा अंदर नहीं आई थी। सिराजुद्दीन कोफ्त के आलम में टांग पे टांग चढ़ाए बेदिली से इधर उधर निगाहें दौड़ा रहे थे। गाहे बगाहे एक उचटती नज़र सामने बैठे नवीद मुराद पर भी डाल लेते, जो यहाँ मौजूद होते हुए भी मौजूद न था। बाहर से हिंद को बोलने वाली मुलाजमा की संगलाख गुफ्तगू कानों पे पत्थर की तरह बरस रही थी।
जिससे वो न जाने किसे फैज़याब कर रही थी। शमशाद बेगम तो हस्बे आदत मोहल्ले के सफारती दौरे पर निकली हुई थी। कभी कभी चंद रोज़ की बच्ची के रोने की नहीब सी आवाज़ भी सुनाई देती। कहाँ रह गई परवीन? सिराजुद्दीन ने रिस्ट वॉच पर टाइम देखा और बुरा सा मुंह बना के बड़बड़ाए। ऐसा कौन सा साजो सामान ले आई थी जो समेटने में इतना वक्त लग गया? मैं देखता हूँ। नवीद मुराद अपने ख्यालों से चौंका और ये कहते हुए उठा, मगर इतने में परवीन चाय की ट्रॉली घसीटते हुए अंदर आ गई। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? वो कसमसाए और साथ में ज़ेरे लब वही बड़बड़ाने की आदत। अब मज़ीद आधा घंटा बर्बाद। परवीन ने घबरा के अपने भाई के चेहरे की जानिब देखा, लेकिन शायद वो अपनी गायब दिमागी की वजह से इस बड़बड़ाहट पर गौर न कर सका। आप फैक्ट्री से सीधा यहीं आ रहे हैं, चाय अभी तक नहीं पी होगी, इसीलिए मैं ले आई। वो कप आगे बढ़ाते हुए मिन्नत भरी नज़रों से शोहर को देख रही थी, जैसे कह रही हो, खुदारा कुछ देर बड़बड़ाहट पे काबू रखें। साजदा होती तो कभी तुम्हें खाना खाए बगैर लौटने ना दिया था उसने। नवीद मुराद की खोई खोई आवाज़ ने माहौल में अफसुर्दगी घोली। और आज तुम मैके में मेहमान हो, मगर तुम्हारी मेज़बानी करने वाली भाभी नहीं है। परवीन, तुम्हें खुद चाय बना के लाना पड़ी है। उसकी आवाज़ कपकपा गई तो परवीन भी दुपट्टा मुंह पर रख के सिसकने लगे। सिराज से चाय का घूंट हलक में उतारना मुश्किल हो गया। इसमें रोने वाली क्या बात है? परवीन, ऐसा ही है तो तुम चाय ना बनाती, ऐसे घर में भी बनाती रहती हो। दिन में कई कई बार यहाँ बना ली तो रोने बैठ गई। अपनी जानिब से शुगुफ्तगी का मुजाहरा करके माहौल को हल्का फुल्का बनाना चाहा, मगर वाज़िया तौर पे परवीन को ये लंतरानी एक आंख न भाई। वो अपनी आंखें खुश्क करते हुए उन्हें शिकायत अमेज़ नज़रों से तकने लगी। वो खसिया के चाय में बिस्किट डुबो डुबो कर खाने में मगन हो गए। वशमा कहाँ है? नवीद ने पूछा। अभी अभी सुला के आई हूँ, रोए चले जा रही थी, शायद पेट में दर्द है। ये कौन ज़ात शरीफ है? भगोया हुआ आधा बिस्किट कुछ ज्यादा ही नरम होकर चाय के कप में गड़ाप हो चुका था। उसे चम्मच से निकालने की कोशिश करते हुए सिराज ने सरसरी सा पूछा। भाईजान की बेटी। परवीन की आवाज़ अब तक रोई रोई सी थी। ओह हाँ, अच्छा, मैं तो भूल ही गया। अच्छा बीबी, अम्मा हूं चल सा। हिंदू या शायद सराइकी बोलने वाली करख्त नकूश की मुलाजमा ने पर्दा उठा के जांगते हुए इतला दी। अभी से? परवीन गड़बड़ा गई। अम्मा को तो आ लेने दो, ये मेरे शोहर आए बैठे हैं मुझे ले जाने के लिए। मुझे अभी अपने घर के लिए निकलना है। जवाबन उस पीतल के रंग वाली मुलाजमा ने, जिसके चेहरे के नकूश और मर्दाना हाथ पैर भी गालबन किसी धात के सांचे में ढलकर तैयार हुए थे, तड़क तड़क करते अल्फाज से भरपूर तकरीर सुना डाली, जिसका लुबे-लबाब ये था। अम्मा के ना आने का पता है ना जाने का। वो अगर रात तक वापस ना आई तो मैं बैठी तो नहीं रह सकती। सुबह की काम पे निकली हूँ, बच्चे घर पे राह तक रहे हैं, घर जाकर कुछ उनकी भी रोटी पानी का बंदोबस्त करना है। मर्द भी शकी मिजाज और हद छट है, देर से गई तो वगैरह वगैरह। इसे तो चुप कराओ। उसकी तकरीर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तवील हो गई तो सिराज ने नागवारी से अपनी बीवी को इशारा किया। रुखसत करो भई, इसे बिठा के क्या लेना है? अम्मा घर पर नहीं है, मैं जा रही हूँ। बच्ची घर में अकेली है, वैसे तो सो रही है, लेकिन जाग गई तो भाईजान कैसे संभालेंगे? इसके लिए फीडर कैसे बनाएंगे? बात करते करते उसके आंसू बह निकले। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही बच्ची की। सिराज ने न हाँ कहा न ना, बस लाताल्लुकी से घड़ी देखते रहे। ये अंदाज भांप कर नवीद ने एक ठंडी सांस भरी। तुम फिक्र मत करो परवीन, मैं वशमा को संभाल लूंगा। और अम्मा कौन सा दूसरे शहर गई हैं, आती ही होंगी। तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे इंतजार में होंगे। इन कलमात को सिराज ने निकलने का अंदिया जाना, चाबियां मेज से उठाई और खड़े हो गए। चले? परवीन ने यूं सर हिलाया जैसे इसके सिवा कोई चारा ना हो। अंदर से अपनी चादर लाने गई तो बिस्तर पर बेखबर सोई वशमा को देखकर उसका दिल भर आया। बेइख्तियार उसे प्यार करने लगी। वो जरा सा कसमसाई तो डर के परे हो गई। हे कहीं जाग ही ना जाए। कैसी आफत मचा के तो सोई है, कच्ची नींद से जाग गई तो परेशान करेगी भाईजान को। ये अम्मा भी ना बस हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। अब इन्हें घर में टिकने की आदत डाल लेनी चाहिए। भाईजान को काम धंधे से भी निकलना होगा, ये बच्ची की पालन ही करते रहेंगे। कितना समझाया था उन्हें रात को, मगर सब बेसूद। अब भी 3 घंटे हो रहे हैं, कुछ अता पता नहीं कहाँ है, क्यों है और कब तक है। वो वशमा की नन्ही गुलाबी उंगलियां धीरे से सहलाते हुए उड़ रही थी। चलो आ जाओ भाई, कमरे के बाहर से सिराजुद्दीन पूरी आवाज़ के साथ चिल्लाए थे। बच्ची ने नींद में चौंक के हल्का सा झटका लिया था। परवीन घबरा के उसे थपकने लगी।
ایک تو میاں صاحب جب بلائیں گے حلق پھاڑ کے۔ بچی کو کروٹ دے کر سلانے کے بعد اس نے ہلکا سا ایک تکیہ اس کے بازو پر رکھا تاکہ اسے دوسراہٹ کا احساس ہوتا رہے، اور دبے پاؤں باہر نکل آئی، مبادا دوسری آواز نہ آ جائے۔ وہ لوگ گیٹ سے نکل رہے تھے اور شمشاد بیگم خراما خراما چلتی اندر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں کھوئے والی کلفی تھام رکھی تھی جسے ندیدے بچوں کی طرح چاٹا جا رہا تھا۔ پروین کو شوہر کے سامنے ماں کی اس حالت پر سخت خفت محسوس ہوئی۔ دیکھے ذرا اماں کو، شوگر کی مریض ہیں، گھر پہ ہم لوگ پرہیز کراتے ہیں اور باہر جا کے کلفیاں کھاتی ہیں، اس نے دبے لہجے میں نوید سے کہا۔ اماں کو کوئی روک سکتا ہے؟ نوید کے انداز میں چیلنج تھا۔ وہ افسوس کے عالم میں سر ہلا کے رہ گئی۔ سراج کے چہرے کے تاثرات بھی تمسخرانہ تھے، کم از کم پروین کو تو ایسا ہی لگا۔ ان تینوں کو سامنے دیکھ کے شمشاد بیگم ذرا چھٹپٹائی۔ ابھی کلفی تھوڑی سی باقی تھی مگر فوراً نیچے پھینک کر مٹھاس سے چپ چپاتے ہوئے ہاتھ چکن کی نفیس چادر سے ہی پونجھ ڈالے۔ واہ، سراج بہو آیا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ مسجد میں اعلان کراؤ، اماں جہاں ہوگی سن کر آ جائیں گی، مگر آپ کی صاحبزادی مانی ہی نہیں۔ سراج الدین نے سراسر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مگر وہ اسے بھی داماد کی خوش مزاجی سمجھی اور اچھا خاصا مردانہ کہا لگایا۔ نزدیک سے گزرتا آئس کریم والا چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا کروں، اوروں کی خوشی غمی میں بھی جانا ہی پڑتا ہے، ساری زندگی اپنے ہی سیاپے تو نہیں نپٹانے ہوتے۔ وہ اپنے مخصوص جاہلانہ انداز میں باہر جانے کی تو جی بیان کرنے لگی۔ میں دوسروں کا خیال رکھتی ہوں، ان کے کام آتی ہوں، تبھی تو دوسرے میرے گھر کی بات کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اب دیکھ لو، ساجدہ کے مرنے پہ کتنی برادری اکٹھی ہوئی، ماشاءاللہ اتنا بڑا جنازہ نکلا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس سے پہلے اس محلے میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہ اٹھا تھا۔ کل 10ویں کے ختم بھی ایسی دھوم دھام اور شان سے کیے کہ برادری نے انگلیاں منہ میں دبا لی۔ وہ جھومتے ہوئے اپنی قصیدہ خوانی کر رہی تھی۔ پروین کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماں کی ان لن ترانیوں کے تانے اگلے کئی روز اسے سننے پڑتے۔ نوید مراد کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے ساجدہ کے ذکر پر یا اس انداز کے ذکر پر۔ اللہ کا کرم ہے، کوئی بڑائی کی بات نہیں۔ اب یہ خاتون انکساری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اور بھی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پروین نے فوراً یہاں سے نکلنے کو ہی غنیمت جانا۔ چلیے، دیر ہو رہی ہے، اس نے ساتھ کھڑے منہ بناتے شوہر کو ٹھوکا دیا، ورنہ ماں کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا چند منٹ کے لیے کسی کونے میں لے جا کر اتنی تاکید تو کر دے کہ آئندہ یوں گھنٹوں کے لیے گھر سے غائب نہ ہو۔ 2 ہفتے کی ننھی سی بچی کی ذمہ داری ہے سر پر۔ لے، ایویں ہی بغیر روٹی ٹکر کے چل پڑو گے؟ نویدے کیا دیکھ رہا ہے کھڑا کھڑا؟ روک بہن کو، جوائی سورے گھر سے بھوکے اٹھ جائے، یہ کوئی قاعدے کی بات ہے؟ نا سراج بہو، اندر چلو، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ اپنے ان چپ چپاتے ہاتھوں سے دماد کا بازو تھام کے اندر لے جانے لگی۔ ابھی کھانے کا وقت ہی کہاں ہوا ہے اماں؟ پروین نے نرمی سے انکار کیا۔ وہ شوہر کے تیور بھانپ رہی تھی جسے 1 منٹ بھی مزید یہاں کھڑا رہنا دوبر لگ رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنا بازو جھٹکے سے چھڑا کے بھاگنے کے موڈ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ واقعی ایسا ہوتا، وہ خود یہاں سے انہیں لے جانا چاہتی تھی۔ اماں جی، میں نے آلو کی بھجیا اور مونگ کی دال بنا کے رکھ دی ہے، چاول بھگوئے ہوئے ہیں، ابال لیجیے گا۔ اس نے تو جاتے جاتے آخری ہدایت دینا بھی فرض جانا، مگر شمشاد بیگم نے اس سے اپنی ذہنی سطح کے مطابق مطلب اخذ کیا۔ اچھا، آلو دال پکے ہیں، اسی لیے تو اپنے میاں کو کھانے پر نہیں روک رہی۔ لے، پہلے بتاتی کہ سراج بہو نے آنا ہے، میں سویرے ہی 2-3 مرغیاں اور بکرے کا گوشت لے آتی۔ خیر کوئی بات نہیں، نوید ابھی جاتا ہے، چرگا، سیخ کباب اور کٹاکٹ لے کر آتا ہے گرما گرم۔ شکریہ، میں بازار کا کھانا نہیں کھاتا، سراج الدین نے چبا چبا کر کہا۔ آپ کو پتا تو ہے اماں کہ میاں صاحب السر کے مریض ہیں، ہم چلتے ہیں، کھانا پھر کبھی صحیح، بھائی جان اور وشما کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہاں، اب بڈھی عمرے میں نے اوروں کا ہی تو خیال رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ دوجے میرا خیال رکھے۔ حق ہاں، چنگا پتر، خیر نال جاؤ۔ نوید نے بھی آگے بڑھ کے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، جو پچھلے 15 دن سے اپنا گھر بار، بچے سب بھلائے اس کی دل جوئی اور اس کی بچی کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ اف، گاڑی سٹارٹ کرتے ہی سراج الدین نے گہری سانس لی۔ تمہاری اماں نے گیٹ پہ پورا آدھا گھنٹہ ضائع کرا دیا، تھکا ہارا فیکٹری سے آیا تھا، اوپر سے تمہیں لانے کی ڈیوٹی، مگر انہیں ان باتوں کا خیال ہو تو رونا کس بات کا ہے؟ آپ کو تو بلا وجہ رونا آ جاتا ہے میری اماں کو دیکھ کر۔ وہ دل کی شکایت لبوں تک لائے بغیر نہ رہ سکی۔ بلا وجہ،
یہ بھی اچھی کہی پروین بیگم. خیر اس پہ ایک بھرپور مناظرہ پھر سہی، فی الحال اس قصے کو رہنے دو. اتنے ہفتوں بعد گھر جا رہی ہو؟ کتنے ہفتوں بعد؟ 2 ہی تو ہوئے ہیں، تنکر جواب دیا. ایک تو تم عورتیں میکے میں رہ کر کبھی جی نہیں بھرتا. اپنی خوشی سے نہیں رہ رہی تھی. آگے پیچھے کبھی 2 دن اکٹھے نہیں گزارے، سوائے احسن کی پیدائش پہ کہ پہلے بچے کی دفعہ میکے میں رہنا ہی پڑتا ہے رواج کے مطابق. میں تو بھائی جان کی شادی کے موقع پر بھی صرف 1 رات رکی تھی، اور میرا تو اکلوتا بھائی، مگر آپ کے مزاج ہی نہ مل رہے تھے. خیر وہ خوشی کا موقع تھا، مگر غم کے موقع پر مصلحت اور خود غرضی سے کام نہیں لیا جا سکتا. یہ ایسا موقع تھا کہ آپ میرے یہاں رکنے پہ ناراض نہ ہو کر اپنی وسیع القلبی کا ثبوت دے سکتے تھے، مگر آپ ہیں کہ بس مسلسل تانے دیے جا رہے ہیں، جیسے میں یہاں میلہ دیکھنے رکی تھی. ہو گئی شروع. کس کا اتنا دماغ ہے جو تم سے بحث کرے؟ ایک زبان ہی تو تیز چلانا جانتی ہو. اس نئے الزام پہ فتل ملا کے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سراج نے گھور کے اسے دیکھا. اتنے دنوں بعد گھر جا رہی ہو مگر منہ بنا ہوا ہے. شوہر سے تو کبھی تمیز یا ادب سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، نہ کہیں سے تمہیں یہ تربیت ملی. اب اماں جی کا بھی لحاظ نہیں رہا تمہیں. انہیں کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ حق دک رہ گئی کہ اس ساری بحث مباحثے میں اس کی ساس کا ذکر تو سرے سے کہیں تھا ہی نہیں. ایک بار بھی تم نے ان کی خیریت تک نہیں دریافت کی مجھ سے. آخر ماں کی جگہ ہے وہ، اتنا چاہتی ہیں تمہیں، اور بہو صاحبہ ہے کہ جھوٹے منہ ان کا نام تک نہیں لیا. اس بے بنیاد الزام پر پروین کو سچ مچ تکلیف ہوئی. جتنی تکلیف اس سے پہلے کی باتوں پر ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف. وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بلا ناغہ صبح شام گھر پہ فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرتی ہے، دوا لی، کیا کھایا، آرام کیا وغیرہ، ہر چھوٹی چھوٹی بابت پوچھتی ہے. اور ابھی سراج کے آنے سے 10-15 منٹ پہلے ہی اس نے ان سے بات کر کے فون رکھا تھا. وہ ان کی خیریت سے لا علم نہیں تھی جو دریافت کرتی، مگر وہ یہ سب ان کو بتا نہ سکی. اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی. اتنی سی بات چپ گئی کہ میں نے ان کی والدہ کی خیریت دریافت کیوں نہیں کی. یہ اعتراض تو میں بھی کر سکتی ہوں میاں صاحب، بلکہ میرے پاس تو اعتراض کرنے کی تو جی زیادہ تگڑی ہے. میری اماں سامنے کھڑی تھی اور آپ نے رواداری میں حال چال پوچھنا تو درکنار، سلام بھی مارے باندھے منہ میں بڑبڑا کے کیا تھا. کیا ساس کے اصول و قواعد صرف مجھ پہ یعنی ایک عورت پہ لاگو ہوتے ہیں؟ یعنی آپ مرد اس سے مستثنا ہیں؟ چلے میرے پاس تو تربیت کی کمی ہے بقول آپ کے، پھر بھی اپنے طور اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے کر گزارے لائق حسن سلوک کر رہی ہوں اپنے سسرالی عزیزوں سے. مگر میاں صاحب آپ کے پاس تو تربیت دینے والی ہستی بھی ہے، پھر آپ کیوں نہ استفادہ حاصل کر سکے؟ یہ سب باتیں وہ دکھی دل کے ساتھ سوچتی ہی رہی. زبان پہ لانے کی ضرورت نہ سمجھی کہ سراج الدین ان لوگوں میں سے نہ تھے جو آئینہ دیکھ کر سنبھل جایا کرتے، خود کو سنوار لیا کرتے. وہ آئینے میں حسب منشا عکس نظر نہ آنے پہ آئینہ ہی پتھر مار کے توڑ دینے والے لوگوں میں سے تھے. گھر پہنچ کر بچوں کو دیکھ کر وہ سب بھول بھال گئی. دیر تک انہیں سینے سے بھنچے رہی جیسے مدتوں بعد مل رہی ہو. حالانکہ ان 15 دنوں میں اماں جی کا کئی بار آنا ہوا تھا اور وہ صرف اس سے ملوانے کی خاطر بچوں کو بھی ساتھ لے آتی تھی. اور تم تو اچھی رہی؟ شوکت جہاں نے فردن سب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اس سے پوچھا. اس نے شرساری سے سر ہلا دیا. میاں کی بے رخی کا ملال کچھ کم ہونے لگا تھا. وہ محبت و عقیدت سے ساس کا گھٹنا دبانے لگی. اگرچہ فون پہ روزانہ ہی بات ہو جاتی اور وہ سب حالات کا علم بھی ہوتا رہتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے میکے سے آئی بہو سے ہر شخص کی بابت پوچھا تھا، حتیٰ کہ ننھی سی وشما کے بارے میں بھی، جبکہ شمشاد بیگم نے رسماً بھی داماد سے چلتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی اماں کو میرا سلام کہنا. بچے تمہارے بغیر خاصے اداس رہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی سنبھالنے میں، خصوصاً حسان اور وسیع کو. دن بھر تو کھیلتے رہتے تھے خوب مزے میں. بیچاری ثنا بہلائے رکھتی تھی. اچھی عادت کی بچی ہے، ماں پہ نہیں پڑی. بات کرتے کرتے انہوں نے آخری فقرہ ذرا آواز دبا کے کہا. پروین کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی. وہ تائید میں سر ہلا کے ٹانگیں دباتی رہی. شوکت جہاں پھر سے اصل موضوع پہ آ گئی. مگر رات ہوئی نہیں کہ دونوں کا رونا بسورنا شروع. ایک کہے مما، دوجا پکارے مامی. احسن گو بڑا ہے، رو کر یا چلا کر اس نے تمہاری ضد نہیں کی، مگر چپ چاپ اداس سا رہا، جیسے تم سے ضد کر کے یا فرمائش کروا کے اپنی منواتا تھا. ویسے اس نے تائی سے ایک بار نہیں کہا کہ چپس بنا دے، شربت چاہیے وغیرہ، اور نہ اس بھلی مانس نے اپنے منہ سے کہا. چلو اللہ بھلا کرے اس کا، جیسے بھی صحیح اتنے دن بچوں کو سنبھالا تو صحیح. ماں جیسی محبت اور توجہ نہ دی، مگر خیال تو رکھا، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی.
दिल में तंग हुई भी हो तो जुबान से नहीं कहा। ये उनकी आदत थी, किसी से गिला दिल में न रखती, फट से कह डालती। इसी तरह किसी की अच्छी बात की तारीफ करने में भी बुखल से काम न लेती। ये सब बातें उन्होंने फ़ोन पे भी कभी परवीन से नहीं की थी कि वो बच्चों के बारे में सुनकर परेशान ना हो। अब सारी तफसील से आगाह कर रही थी। वक्त पे बच्चों को तैयार करवा के, नाश्ता करवा के स्कूल भेजती रही। उनके कपड़े लत्ते, नहाने धोने का इंतज़ाम करती रही। वो उसके एहसान एक एक करके गिनवा रही थी। मेहरबानी है भाभी की, मैं उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगी। वो दिल से ममनून हुई। हालांकि ऐसी ड्यूटियाँ वो महीने में 2-3 बार पूरे पूरे दिन के लिए ज़रूर अदा किया करती थी, जब रक्षंदा किसी दोस्त की हमरा तबलीगी दर्स या शॉपिंग वगैरह के लिए बच्चे घर पर छोड़ कर जाया करती। अलबत्ता परवीन का ये पहला मौका था। हाँ, याद से करना, ऐसे तकल्फ़ात को बहुत अहमियत देती है हमारी बहू साहिबा। हालांकि अपनों में कैसा एहसान। खैर, उन्होंने बात समेटी और फिर हस्बे आदत दूसरी फैलाई। तुम क्यों चुप चुप सी हो? मैं 1 घंटा भी कहीं गुजारा हूँ तो सुनाने के लिए 10 बातें होती हैं। इस हिसाब से तो 15 दिनों में हज़ारों बातें जमा हो चुकी होंगी। ये 15 दिन कैसे गुजरे हैं अम्मा जी, आप भी जानती हैं। उसकी आवाज़ से ही दुख का इजहार हो रहा था। सब्र करो बेटी, जाने वाले चले गए, अब आंसू उनको वापस नहीं ला सकते। बस मगफिरत की दुआ करो। जाने वालों पे तो सब्र किया जा सकता है अम्मा जी, जो बाकी रह गए उनके हाल पे दिल कैसे सब्र करे। वो ज़रा सी बच्ची, बिन माँ की बच्ची, उसकी सूरत आंखों में फिरती है तो सब्र नहीं आता। कैसे पलेगी वो नन्ही सी जान। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, जिसने पैदा किया है वही ज़ात परवरिश का वसीला भी बना देगा। अम्मा से इस उम्र में बच्ची क्या पाली पोसी जाएगी। भाईजान सारा दिन घर पर नहीं होंगे, दूसरी कोई औरत घर पे नहीं। मुझे तो सोच सोच के होल उठते हैं। हाँ, वही वाला मसला। उन्हें ज़हरा के जाने का वक्त याद आ गया। वो भी चंद दिन के वसी को गोद में लेकर यूं ही 8-8 आंसू रोती थी। शमशाद बहन को चाहिए था चंद सालों के लिए बच्ची ननियाल में रहने देती। यही शुरू के दिन मुश्किल हैं, ज़रा सियानी हो तो वापस ले आए। ऐसा हो सकता तो मुश्किल क्या था, मगर ननियाल में नाना नानी तो है नहीं, भाई बावज हैं, वो भी रूखे से। एक तो हालात अच्छे नहीं उन लोगों के, दूसरा दिल भी तंग है। हालात की तो खैर है, अगर वो वशमा को 3-4 साल संभालने की हामी भरते तो भाईजान हर माह माकूल रकम अखराजात के लिए दे ही आया करते। लेकिन उनके दिलों में खुदा तरसी और मोहब्बत तो भरी नहीं जा सकती। खून सफ़ेद हो गया है सगे रिश्तों का। एक बार फूटे मुंह से नाम नहीं लिया उन्होंने बच्ची का। ऐसे भी होते हैं मामू और ऐसे भी होती हैं ममानियाँ। ढके छुपे अल्फाज में अपना एहसान जताना चाहा कि कैसे नंद के बच्चे को कलेजे से लगा कर पाला है, आखिर वो भी तो ममानी है। हाँ सच है, कौन लेता है किसी की जिम्मेदारी। शौकत जहाँ के अल्फाज पर परवीन को धचका सा लगा। क्या उसने ये जिम्मेदारी जी जान से नहीं ली थी? उसके हाथ उनके टांगों पर सुस्त से पड़ गए। तो फिलहाल हम एपिसोड 3 के लिए इधर ही रुकेंगे। अब थोड़ा मज़ा आने लग गया है मुझे, लेकिन वही टिपिकल स्टोरी ही है, समझ आ गई है मुझे और मज़े की लग रही है स्टोरी। अब पढ़ने में मज़ा आने लग गया है, बस थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे पढ़ने में, इसलिए मैं छोटी छोटी एपिसोड्स बनाऊंगी। और हाँ जी, एक बात जो भी मैं पढ़ रही थी अभी ताज़ा ताज़ा मेरे जहन में चल रही थी। इसमें जब वो सोचती है, वो उसको कह रहा है कि मेरी अम्मा का तुमने खैर खैरियत नहीं पूछी, ये वो सब सिराज उसको कह रहा है। और वो उसके कंट्रास्ट में जब वो सोचती है कि मतलब मेरी अम्मा तो सामने खड़ी थी तो आपने तो उनका हालचाल नहीं पूछा, तो क्या मतलब सास सिर्फ मेरी है, आपकी भी तो सास है, आपने अपनी उधर ड्यूटीज़ क्यों नहीं अच्छे से निभाई, मेरे से अब एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये सब करूं। तो वो मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, अब ये देखो जैसे यहाँ पे भी अब कंट्रास्ट में एक बात चल रही है, जैसे वो कह रही है उसकी सास के जो है ना बच्ची को उसके ननियाल वाले पाल लेते तो कौन उठाता है उसकी ज़िम्मेदारी। मेरे ख्याल से इन ये दो ही अभी ऐसी कंट्रास्ट सिचुएशंस आई हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि उसकी सास उसको कुछ समझा रही है तो वो अपने से उस चीज़ को रिलेट कर रही है। तो वैसे ये सिराज बड़ा ही सड़ियल बंदा लग रहा है मुझे, बदतमीज़। इसके अलावा और क्या था, हाँ वो मुनज़्ज़ा और मसहर कितना जाहिल बंदा है भाई। उसने मशीन लगाई है, ये क्या ज़रूरत है, ये उसके हैं, ये पर्दे हैं, उसकी शर्ट्स हैं, उसकी पैंट्स। खुदा का नाम लो,
اگر وہ دھو رہی ہے ساس اس کے سسر کے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بول دو آدھے دھو لے، مت دو. لیکن اس طرح کر رہا تھا نا، وہ بالکل جاہل ہی لگ رہا تھا. صحیح منزہ کو چڑ چڑتی ہے اس سے، اور منزہ بھی جو ہے نا کبھی مجھے پاگل ہی لگتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ بھی پھر ایسی سچویشن. تمہیں پتہ ہے کہ جب میرا میاں اس بات پہ بتنگڑ کرے گا، میاں کو بعد میں اشارے کرتی ہے کہ تم نہ لڑائی کرو لیکن پہلے لڑائی کی وجہ کیوں بناتی ہے وہ؟ تھوڑا سا بندہ کہہ سکتا ہے نا ان کو آرام سے. لڑائی تو پسند کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن مطلب آپ آرام سے اس کو کہہ دو کہ یہ میں کل لگا لوں گی، یا تھوڑے آج دوں گی تھوڑے کل دوں گی، یا یہ کہ یہ پردے آج رہنے دو، جب وہ نوکرانی آئے گی یا میڈ جو بھی بولتے ہیں، بھائی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اس چیز سے، تو تب دھو لوں گی میں. لیکن نہیں. اور کیا تھا اس میں ڈسکس کرنے والا جو مجھے کچھ تھوڑا لگا ہو؟ بس یہی تھا. وشما نام رکھا ہے اس کا. اور یار یہ بھی جو شمشاد ہے نا، یہ کیسے بچی کو پالے گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب اس کی نوید مراد کی دوسری شادی ہوگی، یا شاید شادی نہ ہو دوسری. مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ وشما بھی اب جائے گی پروین کے پاس. تو اب وہ وسی کو بھی پال رہی ہے، وہ اس کو بھی وشما کو بھی پالے گی. اور میرے خیال سے وسی اور وشما ان دونوں کا کوئی پیئر بنے گا، اور آگے سٹوری جو ہے نا مین ان کی رہے گی. خیر کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ مجھے لازمی بتائیے گا. تو جلد ہی پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.